including some questions raised on the viability of the land. 5 valuable years have been lost. After the recent NDA government has assumed power earlier this year, the state government has issued the necessary clarifications, joint surveys have been conducted, and I thank the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Railway Minister Shri Ashwini Vaishnav ji for initiating tenders for the South Coast Railway Zone. What I would like to highlight and ask here is that similar railway zones announced on July 4, 2002, like Southwestern Railway Zone Hubli, Southeast Central Railway Zone Bilaspur, East Coast Railway Zone Bhubaneswar, were announced July 4, 2002, but were started off in temporary accommodations by April 1st, 2003. Given this precedence, can the Minister asking to you, sir, can the South Coast Railway Zone, because the process of tendering has already begun, can it be operationalized from temporary campuses before the full building is completed? Is the question, sir. Honorable Speaker, sir, the Honorable Member has raised a very valid point regarding the South Coast Railway Zone. It's a new zone, and as Honorable Member has already noted himself, we have already placed the tender for the construction of the zone building. Whatever land issues were there earlier, they have been sorted out. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has been continuously following up. Even Honorable Shri Ram Mohan Naidu ji, he is also regularly following up this matter. So on the whole, this zone is now on track to get operationalized. We have also appointed one OSD, Operation on Special Duty, so that all the operational matters which need to be considered while making this zone operational can be checked in full detail, and as and when the operational matters are checked in full detail, we'll have a common discussion between all the stakeholders and then take it forward. Honorable Member, supplementary. Thank you, Speaker, sir. I'd like to take a different direction in the question. Safety and speed are the twin pillars of the modern rail travel in India, and I was fortunate to meet the Minister recently and discuss about this. So what I would like to ask about is what steps are being taken to enhance the average speed of the Vande Bharat and other express trains, and additionally, with the focus on reducing manual intervention and leveraging technology and advanced safety measures, what measures has the government put in place such that there is fast but safe and secure travel for passengers across the nation and across these routes? जैसे मंत्री जी संक्षिप्त में जवाब दे रहे हैं, आप भी संक्षिप्त में वो प्रश्न पूछें. Honorable Speaker, sir, the question is not related to the main question. However, I will give a very short answer to this. The condition of the tracks is continuously being upgraded. The tracks were designed for 70-80 kmph 10-15 years ago. Over last 10 years, most of the tracks have been upgraded significantly, and today more than 80% of the tracks in the Indian Railway network are basically operational at 100 kmph or 110 kmph. We are continuously upgrading to 130 kmph also, and some of the sections have been designated for 160 kmph. Multiple actions are being taken. First, improving the quality of the rails, having a better specification of the railway, the manufacturing process of the rail. Second, wherever there are curves, we are trying to reduce the curves. Third, we are trying to get better quality of sleepers and better quality of fasteners. Fourth, the development of Kavach has been now completed. On 16 July 2024, Kavach version 4.0 was completed, and now a large-scale implementation of Kavach is being done. Practically every locomotive is today getting fitted with the fog safety device. Multiple number of actions are being taken, Honorable Speaker, sir, to improve the speed of the trains. Shri I.B. Eden. Sir, thank you, sir. Sir, there are around 110 acres of land in the heart of the Ernakulam constituency, which is known as the Ernakulam Marshalling Yard. And this particular area belongs to the Indian Railways. Per cent cost is around 50 lakhs. And this particular stretch of land connects the Kochi Metro Rail, the one and only water metro in the country, Kochi Water Metro, and also the Vaitila Transportation Mobility Hub. Sir, if the railway, Indian Railways develop, this is around
more than 5,000 crores worth of land. And if, 50,000 crores of land. And this particular land, if it is developed, the major constraint Kerala faces is the availability of land. And when we have a prime land with the Indian Railways, why can't we start a new terminal inside the heart of the city, where the government policy is a multi-modal system, where with a single ticket you can travel in the Indian Railways, the metro rail, the water metro, and also the normal buses. So this would be one of the finest projects in the country. Sir, also Vande Bharat train has been of huge demand in Kerala, especially the Kochi Bengaluru route, which was allotted in between as a special train, as you mentioned. Okay. Why can't we retain this? There is a huge private bus lobby which is benefiting from this particular route. We are under the criticism that we are helping the private bus lobby. Would there be any specific arrangements to make sure that there is a route from Kochi? Night trains can be allotted for Vande Bharat, because night we are traveling, sir. Honorable Speaker, sir, the question is totally disconnected from the main question. However, I would like to point out that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is totally committed towards developing the railway network of Kerala, and the allocation of funds he has given is huge, more than 3,000 crore rupees, which is almost 8 times what it used to be 10 years ago. However, the support from the state government is not forthcoming, Honorable Speaker, sir. The land acquisition in the state of Kerala, despite the funds having been deposited, is a meager 16% of what land is required. I'll request that all the honorable MPs may please also help the railways by following up with their state government so that the land can be acquired. From our side, Honorable Speaker, sir, we are very focused on developing the railway network throughout the country, including Kerala, and whatever land issues Honorable MP has raised, he may please come and discuss in detail with the map of the area, and his ideas will be very welcome for developing that parcel. Sri T.R. Baluji. Sir, thank you very much, sir. So, in fact, this question pertains to my birthplace. Say, 14 years ago, Manavadi Pattukotai line, the broad gauge line, has been started, and it is not just like it has become orphan of, because even the bridge across the Pabani River also constructed, but it left as it is port for the past 14 years. It is pending. The next one is Thanjavur Pattukotai. Thanjavur Pattukotai land acquisition, everything has they have done, but things are not taken up because of it becomes it's all become DMK constituency. Maybe I don't know whether the minister will take it in the proper perspective, and he should not say land acquisition is pending. If there is a land acquisition pending, why don't you go and meet the concerned state officials or state ministers or central officials to find out the ways and means to purchase the land immediately? But you cannot just say land acquisition pending, you cannot charge the state government. Honorable Shri Baluji is a very senior person, and we all respect him a lot. He has held the multiple portfolios, and he understands how difficult it is, and he also understands how important it is to coordinate with the state government so that the projects which Honorable MP mentioned, and these are the projects where both the state government and the central government have to work together to make sure that the projects are progressed. I would like to put on record, Honorable Speaker, sir, that for Tamil Nadu, the funds which were allocated during the UPA government were only 879 crore rupees per year, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is today allocating 6,362 crore rupees for railways in Tamil Nadu. And it's a huge jump. Unfortunately, out of the 3,389 hectare land required for development of the projects in Tamil Nadu, the land acquired is only 26%, 866 hectare. The land which has to be acquired, we are continuously following up with the state government,
and our officials as well as at my level, we are constantly pursuing the state government, and I'll request Honorable MP also to please pursue the state government to support this, because railways and defense, these are two departments which have to be out of politics. They are required for the country. They are very essential for the development of our country, and going above the politics, we have to work there. We have to make sure that railways and defense, these two departments, keep serving the nation, and the development of the railways is very important for our economic development. So I'll request Honorable MP sir to please have a meeting with Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and I'll send my officers. I'll also send our MOS also, if you say, and we can have a follow-up of all the land acquisition issues. माननीय सदस्यगण, आज रेल बिल पर चर्चा है। मैं एक और आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कई सालों से प्रश्नकाल के अंदर 20 प्रश्न लॉटरी में आते हैं और बड़ी मुश्किल से आती है। कई माननीय सदस्यों की तो पूरे एक वर्ष में लॉटरी में नंबर नहीं आता, कई का एक ही सदन में 2-2, 3 बार आ जाता है। लेकिन व्यवस्था लॉटरी की है जो सभी पारदर्शिता के साथ माननीय संसद सदस्यों की मौजूदगी में निकलती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय सदस्य भी और माननीय मंत्रीगण भी मेरा सहयोग करेंगे, संक्षिप्त में प्रश्न पूछेंगे, संक्षिप्त में जवाब देंगे, ताकि हम 20 की लिस्ट को पूरी कर सकें, ताकि जो 20 की लिस्ट आई जिसको पूरा हक बनता है कि मेरा प्रश्न आया है तो कम से कम मुझे एक बार पूछने का मौका तो दिया जाए। ये सदन सब सहमत होंगे इस विषय को लेकर, इसलिए ये प्रयास अपन को नया करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 श्री मनीष जायसवाल जी। क्वेश्चन नंबर 122 माननीय उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैंने अमृत भारत स्टेशंस को लेकर के ये प्रश्न सदन में लाया है, जवाब मुझे मिला है। अब जवाब में मैं मंत्री जी से केवल एक आग्रह करना चाहूँगा कि रेल नेटवर्क बहुत बड़ा है और जो विकसित है उसको और विकसित किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र रेल के मैप से में अविकसित हैं और जिनको डेवलपमेंट का अच्छा अवसर नहीं मिला है, उनको आगे बढ़ाने का काम भी किया जाना चाहिए। अब जैसे मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता हूं और अमृत भारत स्टेशन में केवल। माननीय सदस्य प्लीज, आपको इतनी भूमिका आने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे आते, मेरे संसदीय क्षेत्र में ये मांग है। आप इतनी भूमिका अगर सब बांधेंगे, मंत्रीगण भी इतनी भूमिका बांधेंगे, उसकी भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, प्रश्न, ठीक है, उसका जवाब देखिए, व्यवस्था बनाओ ऐसी। मेरा आग्रह है मंत्री जी से कि इस लोकसभा क्षेत्र के बरही, हजारीबाग टाउन, कुज्जू, बड़काकाना, पतरातू, रामगढ़ और गोला, इन सब स्टेशनों को भी विकसित किया जाए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद उनको दूंगा कि भाई उन्होंने एक ट्रेन हम लोगों को दिया है अभी गया से बॉम्बे के लिए। अब हजारीबाग लाइन को, जो कि बेसिकली अभी केवल माल ढुलाई के काम में आता है, ये कोयला ढुलाई के काम में आता है, इसको पैसेंजर एलिजिबल करने के लिए इसको डबल किया जाए और हजारीबाग के विभिन्न स्टेशनों को दिल्ली, कलकत्ता और वेलोर से जोड़ा जाए। और एक मांग मैं ये प्रश्न के बाहर से भी करना चाहता हूं कि अभी आप सप्लीमेंट्री और मिलेगी आपको, उसमें कर लेना। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और झारखंड के कंप्लीट पूरे रेलवे की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माननीय मोदी जी एक प्रयासरत है। बहुत अच्छा फंड एलोकेशन झारखंड के लिए किया है और प्रोजेक्ट्स का भी रेगुलरली फॉलोअप होता है। इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदय के जो प्रश्न जो इन्होंने जो मांग की है उसको मैंने नोट में लिया है। माननीय सांसद जी के साथ में डिटेल में चर्चा करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक राजधानी चलती थी बड़काकाना होकर के, रांची से बड़काकाना होते हुए ये दिल्ली की तरफ आती थी। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है।
अगर आपकी नजरें इनायत हो और पुनः इसको चालू किया जा सके, और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जो अन्य स्टेशन हैं उनको भी अमृत भारत में जोड़ करके उनका भी विकास किया जा सके, यही मैं आग्रह करूंगा। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम हिंदुस्तान में चल रहा है। 1300 स्टेशन का एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है और उसका काम बहुत विस्तृत तरीके से चल रहा है। कई स्टेशंस तो इतने बड़े स्टेशंस हैं कि उस पर 700-800 करोड़ रुपए का भी खर्चा हो रहा है। बहुत सारे स्टेशंस हैं जिन पे 100 से 200 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये इतना बड़ा कार्यक्रम एक बार एक बड़े लेवल पे चला जाए, उसके बाद में फिर माननीय सांसद महोदय के साथ सबके साथ विचार करके और स्टेशंस का भी उसके बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि ये 1300 स्टेशंस हैं, इनका कंप्लीट करें और एक अच्छी देश भर में जो अपेक्षा है रेलवे से, वो उस अपेक्षा के अनुरूप स्टेशंस का डेवलपमेंट करें। श्री दर्शन सिंह चौधरी। महोदय जी, आज मैं माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद कि हमारे 7 अमृत स्टेशन मेरे लोकसभा क्षेत्र में आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन 7 के अलावा 11 अन्य स्टेशन जो है छोटे छोटे, उन स्टेशनों पर भी विकास के कार्य किए जाएं, क्योंकि उसके पहले भी पिछले बार जब सत्र में मांग करी थी तो उसकी पूर्ति माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने और माननीय मोदी जी ने की है। इसके लिए मैं आभार और धन्यवाद करता हूं। मैंने नई रेल लाइन की भी मांग करी थी, वो भी आपने पूर्ति की है, उसका भी धन्यवाद। अन्य मांग भी करी, लेकिन आज इस सब स्टेशन, ये अमृत स्टेशन के माध्यम से, चूंकि हम छोटे छोटे स्टेशन जो हैं उसमें रहता तो स्टेशन छोटा, लेकिन 150 से 200 गांव उसमें जुड़े रहते हैं। हमारा निवेदन ये है कि इन छोटे स्टेशनों के भी विकास किया जाए, उनको दिया जाए, और जो ट्रेन स्टॉपेज के हर सदस्य की मांग रहती, उसका एक सीधा सॉल्यूशन इतना ही है कि हमारी कोरोना में जो बंद हुए हैं उनके स्थान पर विकसित करते हुए मेमो ट्रेन देकर छोटे छोटे स्टेशनों पर जैसे मेट्रो सिटीज में चलती हैं, ऐसे ही गांव के लेवल पे ऐसी ट्रेन चलाकर हमको सुविधा देने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा है और यही हमारी मांग है कि इन लोकल ट्रेनों से जो 20 से 25 किलोमीटर के लोग और पूरा हमारा धंधा, चाहे हमारे छोटे छोटे छात्रों की मांग हो चाहे सबकी मांग हो, उनको पूरा करने का काम आप करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जी ने 2 विषय उठाए। पहला विषय छोटे स्टेशन का है। मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एक ऐसी पहल की जिसमें केवल बड़े स्टेशन नहीं बल्कि बहुत सारे मझौले और छोटे स्टेशन भी 1300 स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण उसके माध्यम से देश के कोने कोने को जोड़ा था, वैसा ही आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरह अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से छोटे छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उनका भी आज विकास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं 10 साल पहले किसी स्टेशन पे जाना भी मुश्किल होता था। आज साफ सफाई है, ट्रेनों की सफाई है, ट्रेनों में सब जगह टॉयलेट्स बन गए, स्टेशंस का बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बहुत एक बड़ा चेंज आया है। और दूसरा विषय माननीय सांसद जी ने जो उठाया है वो है कि लोकल डिस्टेंस के लिए एक नई तरह की ट्रेन बनाई जाए। मैं आपको आपके माध्यम से इस महान सदन को फिर बताना चाहूँगा कि नमो भारत रैपिड रेल का डेवलपमेंट किया गया और पहली गाड़ी बन के डिप्लॉय हुई है भुज से अहमदाबाद के बीच में, और वो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। उसका बहुत अच्छा पैट्रोनेज है। जो लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं वो लोग कहते हैं कि ये वाकई एकदम नया तरह का एक्सपीरियंस है। तो माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। श्री आर सचिदानंदन जी। Thank you, Speaker sir. What are the criteria for selecting the stations under this Amrut Bharat scheme? In my constituency, Kodaikanal Road and Ottajitharam stations should be included in this scheme.
And also I request you to resume the Reddyar Satram station which has closed earlier. Honorable Speaker, sir, railway stations are very complex when we compare them with other constructions, because the train has to continue to operate. Unlike other, let's say an airport, when we construct an airport is quite separate from the runway. So airport can be constructed without much of a disruption of the operation of the aircrafts. Same is the case with other commercial buildings. In the case of railway, since the train operation is directly integrated with the station development, so when we selected the Amrit Bharat station scheme stations, we tried to make sure that the disruption of the traffic operations, disruption of the train operations will be minimal. That was the primary criteria for selecting the stations. And as I said earlier, this is the largest station redevelopment program anywhere in the world happening at this point of time. 1,300 stations actually getting constructed at this point of time. As and when this project is further progressed, we'll reconsider. मैंने पूर्व में भी कहा, आज भी इस प्रश्नकाल पर रेलवे पे एक लंबी सूची है। मैं एक को बुलाऊंगा, एक को नहीं बुलाऊंगा तो न्याय नहीं करूंगा, इसलिए ज्यादातर लोगों को विधेयक पर बोलने की अनुमति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री नागेश बापूराव अष्टिकर पाटिल। थँक यू सभापती साहेब। रेल्वे मंत्री सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्याच्यामुळं त्यांनाही धन्यवाद। राष्ट्रीय आणि राज्य स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंसाठी रेल्वे सवलती सुरू न ठेवल्याने खेळाडूवर होणारा परिणामाचा सरकारला जाणीव आहे का? तसे असल्यास कृपया सरकारने आपल्या कोणत्याही मूल्यांकनाचा तपशील दिलेला आहे ते द्यावा। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सामान्य झालेल्या खेळाडूंमध्ये रेल्वे भाड्यातील सवलत पुनर्स्थापित करण्याच्या काही योजना आहेत का? तसे असल्यास या सवलती पुन्हा सुरू करण्यासाठी तपशील आणि जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा इस प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट तौर पे मेंशन किया गया है, आज भारत सरकार रेलवे में पैसेंजर्स को अफोर्डेबल रखने के लिए 56,993 करोड़ रुपीस की सब्सिडी दे रही है। यानी अगर कोई पैसेंजर सर्विस को ऑपरेट करने की कॉस्ट 100 रुपये है तो उसमें टिकट का प्राइस मात्र 54 रुपये रखा गया, यानी 46% सब्सिडी सभी को दी जा रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। थैंक यू सभापति साहब। सप्लीमेंट्री में मैं कहना चाहूँगा, ये इंटरसिटी हमारे नांदेड़ से चलती है, उसको कोच बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो नांदेड़ हमारी मुंबई जाने वाली जो देवगिरी एक्सप्रेस है, वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर्स रहते हैं और हमारी एमपी की भी हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा मंत्री महोदय से कि एक वो जो कोचेस है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, उसके एक एक अगर कोच बढ़ा दिए जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। आज जनरल कोच बढ़ाने पे बहुत फोकस दिया जा रहा है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी कोच बढ़ाने का फोकस नहीं है, फोकस जनरल कोच बढ़ाने का है। और 1000 जनरल कोच दिसंबर के एंड तक एक्स्ट्रा बढ़े जा चुके हैं और इसके साथ ही साथ 10,000 जनरल कोच का स्पेशल प्रोडक्शन का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। हमारी परिणति शिंदे। Honorable Minister, I would like to ask you a specific question related to a sports concession for sports persons, because these sports women and men throughout the country have to travel a number of times to various districts, various states within the country, not just once. And the Ministry of Sports and Youth Affairs has written to the Ministry of Railways on several occasions before,
and ask them for concessions specifically for sports persons. This is not covered under disabled, or it's not covered under your subsidies that you give everybody, but specifically also for various states the budget for Khelo India has been reduced. With such a background, are you going to specifically give concessions to young people who are participating in sports, who are making our country proud, and give specific sports persons concessions to travel by railways, because they have to do it multiple number of times throughout the year? Honorable Speaker, sir, as I have mentioned earlier, when the cost of providing the service is 100 rupees, the price that we are charging is about 54 rupees, which amounts to 46% subsidy to everybody who is traveling by railways on an average. And the amount of this subsidy is today 56,993 crore. And the sports persons are included in that. Shri Durai Beko Vaiko. Honorable Speaker, sir, this is a question pertaining to concessions, but to senior citizens and accredited journalists. Sir, it's very unfortunate that the train fare concessions which were extended to senior citizens and accredited journalists, which was discontinued during the COVID-19 pandemic, has still not been resumed. So even after 2 years, I had raised this issue on 31st July before you, sir. I would like to know from the Honorable Railway Minister about the centre's decision to restore the same, sir. Honorable Speaker, sir, as I have mentioned, I am repeating it again. The total subsidy provided by the Government of India for all passengers travelling in Indian Railways is 56,993 crore rupees. When the cost of providing the service is 100 rupees, the ticket is charged at rupees 54, which amounts to 46% subsidy for every passenger travelling, which includes all the categories which are mentioned by the Honorable MP. Question number 124, Shri Suresh Kumar Shetkar. No? 56 rupees, 44, 54, 46. I know the numbers from by. Honorable member, question number 124. Okay, Mani Mantri ji. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Honorable member. Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me opportunity to speak in the House today. The PM Surya Ghar Mufti Bijli Yojana is a significant step toward achieving India's renewable energy goal. But it seems there are some shortcoming issues like lack of proper awareness among the people who want to avail, and also need to more simplified installation process to help the beneficiaries, because there is hard gap between registrations and applications. My supplementary question to the Honorable Minister for New and Renewable Energy through the Chair is what steps the government is going to take to address the issues. Sir, there is a portal as far as PM Surya Ghar is concerned. The target is 1 crore household, and more than approximately I am telling, more than 1.5 crores have already been registered, and more than approximately 6.5 lakhs, 6.28 lakhs to be precisely, have already been connected. And there is a portal. And we have repeatedly requesting all the state government to encourage the PM Surya Ghar, which is in real term, it is Muft Bijli for the poor people and middle class people. And I request honorable members, I don't want to politicize the issue. Telangana, as far as overall renewable is concerned, it is lagging behind. The overall Telangana, as of today, it's only 3.7% of the registered application they have been connected. There is a major role of the state government and the DISCOMs. DISCOMs have to provide net metering. DISCOM, many in the states, still there is a physical verification system has been there. And through portal, anybody can apply.
and vendor list is available on the portal, and this is very, very user friendly, and anybody, if there are any issues through that portal, if it is brought to the notice of the ministry, we will immediately address it. And it is very, very encouraging. Many states, they are doing extremely well. And as far as overall renewable is also concerned, either in PM Kusum or in the total installed capacity, the Telangana is still lot they have to do. For example, the wind power potential of Telangana is estimated 54.71 gigawatt. However, only 128 megawatt has been done so far. And under PM Kusum, 4,000 megawatt was demanded by the state. Even in that, the total progress is 0 as on date. And similarly, state has performed very poorly under PM Suryaghar, 1.17 lakh registration, only with 4,422 residential installations have been carried out. I only request, I am only giving you this figure to kindly talk. I appeal to the entire house. This is really a most sustainable model. When it comes to the 300 units, minimum 300 units will be generated by 3 kilowatt of the solar installed capacity, that is rooftop, under PM Suryaghar. It will minimum generate 300 units of the electricity every month. So in reality, it is a very good scheme. It is sustainable scheme. Instead of giving free without any budgetary provision and making discoms in a way unviable, this is the best scheme. I appeal all the members, take it to your credit. आप जाके आप लोगों से मिलिए, PM सूर्यघर उनके घर के ऊपर लगाइए और अपने क्रेडिट में आएगा, वो पक्ष हो विपक्ष हो, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. Honorable member, simplified the process. तो पोर्टल में जाएंगे, जो रूरल एरिया में जो रहते हैं उनको पोर्टल ये सब चीज़ें काम मालूम होंगे सर. तो आप जो है एनर्जी मिनिस्टर, you can call all the state ministers and how this process will go simplified. Then sir, another disparity. The scheme has allocated 9,600 crores in 24-25. But it appears that disbursement of refunds and benefit is highly uneven across the state. For instance, while Gujarat has received significant CFA funds amount rupees 1,348.69 crores. Other states like our Telangana, 19.69, and Nagaland and Jharkhand, 0.6 and 0.2 crores, respectively. How does the government plan to address these disparities in fund allocation and ensure equitable distribution, sir? Okay. मैं यही कहना चाहता हूं, जिस राज्य परफॉर्म करेगा उस स्टेट को तुरंत पैसा बेनिफिशियरी से अकाउंट में जाएगा थ्रू डीबीटी. इसमें कोई किसको न जाता है किसको नहीं जाता है, इस बेनिफिशियरी को इस स्टेट में फलाना स्टेट में हम डीबीटी होता है, फलाना स्टेट में नहीं होता है, सवाल ही नहीं है जी. इट इज ए डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट. 75,000 crores हैज बीन अलोकेटेड. एंड इफ अगर आपके कोई भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर के ऊपर सोलर मॉडल जो रूफटॉप सोलर लगाए तो अंडर पीएम सूर्यघर विद इन मैक्सिमम 15 to 21 days the amount will be credited to their account, the beneficiary account. And there are vendors, and vendor list is also published in the portal. Anybody can approach, and even those vendors are also helping the beneficiary to take the benefit of this project, sir. There is absolutely, Gujarat is doing more, and even some of the states, other states are also doing more. And if they are doing more, then we will transfer it to them. There is no question of any, either to this state or that state. Okay. If Telangana perform, we will immediately transfer to the Telangana beneficiaries also. श्री इठिला राजेंद्र. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं.
आज इस देश के अंदर आज तक जो प्रोडक्शन है 453 गीगावाट, आउट ऑफ विच 10 साल के अंदर हमारा गवर्नमेंट जो विजनरी नरेंद्र मोदी जी जो पॉजिटिव स्टेप लिया था 200 गीगावाट में आज आया था। जो प्रधानमंत्री बिजली का जो प्रोग्राम गरीब के लिए रखा था, मैं नंबर 1 जो अर्बन एरिया में बस्ती रहता है, छोटा छोटा ज़मीन में 3 फ्लोर 4 फ्लोर जो बना के जो रेंटेड पे रहता है, मगर हमने जो आदेश किया था केवल 78,000 रुपीज़ ईच फैमिली एंड 3 किलोवाट का जो आप दिया था, मगर वो रेंटेड के फैमिली के बारे में क्या सोच है आप बताना है। नंबर 1। नंबर 2 नहीं, नंबर 3 मत पूछो आप, नंबर 1 ही पूछो। नंबर 2 जो गांव में झोपड़ी रहता है, जो 10-15 जो झोपड़ी रहता है वो गिरजन आदिवासी का रहता है, उसके बारे में क्या सोच है आप बताना चाहिए। माननीय मंत्री जी। नंबर 3 नहीं, नंबर 2 सर लास्टली सर हो गया सर। नमस्कार। जहां झुग्गी झोपड़ी है, जहां लोग भाड़े पे रहते हैं, भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडरशिप में हमने पीएम आवास योजना में भी पक्का घर दे रहे हैं। अगर इस पक्का घर का जो योजना है पीएम आवास योजना, उसमें सभी स्टेट इसका उपयोग करके अगर पक्का घर बनाता है तो एक तो उस घर के ऊपर हम इवन 1 किलोवाट भी हम 1 किलोवाट पे मिनिमम 100 to 110 यूनिट्स जनरेट होता है। उस जनरेशन से उनका जो 50-60 यूनिट्स है वो 50-60 या 70 यूनिट्स वो उपयोग करके बाकी वो बेच सकते हैं डिस्कॉम को। ये सब ऑलरेडी इट इज इन प्लेस। यूपी में भी हो रहा है, लेकिन आप यूपी का सर, अखिलेश जी यूपी का संसद सदस्य है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो करा दो ना, ये तो नेता है। तो इसलिए मैं यूपी नहीं जाते, मैं पुरानी बातें याद करूंगा और बताऊंगा तो अखिलेश जी को बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। ना आपको इजाजत है ना आपको इजाजत है, केवल आप भी। जी सर, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। हाँ, आप भी। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। ब्राज हैं जी। माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह कर रहा हूं, जिसको मैंने इजाजत नहीं दी उसका जवाब देने की आदत छोड़ दें। धन्यवाद सर, आपका एडवाइस मैं पूरा मानता हूं सर। और इसके साथ ही साथ एक रेस्को मॉडल है, आरई सर्विस कंपनी जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल पर भी भारत सरकार के सब्सिडी लेके वो एक ग्रुप सोलराइजेशन का, ग्रुप रूफटॉप सोलराइजेशन हो, एक ग्रुप सोलराइजेशन हो, वो कर रहा है। ऐसे तो उड़ीसा में नया गवर्नमेंट इसमें काम भी किया है। उधर का जो डिस्कॉम है टाटा पावर, ये सपोर्ट करके हर घर के ऊपर वो रूफटॉप सोलर पीएम सूर्यघर योजना में लगा रहे हैं। इसीलिए उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो कुछ भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दैट विल गो टू द डिस्कॉम्स, बट एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए रेस्को मॉडल में ऑलरेडी कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ट्राइबल एरिया में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान में पीएम जनमन में और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियोजना में 1 लाख अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड थ्रू ऑफ द ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइडेड 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50,000 हाउस होल्ड। ये भी है। ऐसे बहुत स्कीम्स है। मैं सबसे विनंती करता हूं ये सब स्कीम्स का उपयोग करते हैं तो देश में गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। इससे एक तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब जो हो रहा है पोल्यूशन, इसका भी समाधान निकलेगा और फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। देयर आर मेनी स्कीम्स with the various departments, and if state government supports,
this is going to be the most successful model. And this PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana jo hai, this is the one of the biggest scheme of the world where free of cost of electricity is supplied. This is the Modi's vision. This is what I would like to clarify. Shri Mia Altab Ahmed. सर मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होता है, 12 से 15 घंटे का वहाँ पावर कट है। हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनका पावर तो नेशनल ग्रिड में जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये अपील होगी, आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे आप इस स्कीम को प्रायोरिटी दे देंगे और जितनी इसमें सब्सिडी आप दे सकते हैं इतनी अच्छी स्कीम में वहाँ के लोगों को दीजिए, प्रायोरिटी दे दीजिए, क्योंकि विंटर में 6 महीने उन लोगों को मुश्किल होती है। मुफ्त बिजली योजना जो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दिस इज फॉर ऑल स्टेट सर। तो जो स्टेट परफॉर्म करेगा, अभी तो हम 75,000 करोड़, वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम है फॉर द फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। इसलिए जो भी इसका उपयोग करेगा, जम्मू कश्मीर में भी इसका उपयोग करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और जो भी एप्लीकेंट्स 8,500 एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड 2.88 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा भी लद्दाख में हमने एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया है। उसका इवैक्यूएशन का भी काम बहुत तेज गति से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 125 श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर। क्रमांक 125। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडची संपूर्ण देशभरात दूरवस्था आमच्या लोकसभा क्षेत्रात देखील BSNLच्या नेटवर्कच्या त्रासामुळे अनेक सरकारी कामकाजामध्ये मोठे अडथळे निर्माण होत आहे। केंद्र सरकार जेव्हा डिजिटल इंडियाचा डिंडोरा जगभरात पिटत आहे तेव्हा BSNL सारख्या कंपन्याचे भारतभर मजबूत जाळे पसरलेले असूनही रसातळाला या सगळ्या कंपन्या गेल्या आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझे या प्रश्नाच्या संबंधित स्पेसिफिक 2च प्रश्न आहे की पहिला प्रश्न असा आहे की BSNLचे जाळे संपूर्ण देशभरात ग्रामीण भागात सुद्धा पसरले असताना तुम्ही सरकारी कंपन्यांना बाजूला ठेवून प्रायव्हेट कंपन्यांना प्राधान्य देऊन मोठे करत आहे, तर BSNL सारख्या कंपन्या बंद करण्याचा सरकारचा काही मानस आहे का? आणि दुसरा माझा प्रश्न आहे की जिओ, एअरटेल, VI सारख्या खाजगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहे आणि BSNL सारख्या ज्या सरकारी कंपन्या म्हणून काम करत आहेत त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे मानधन देखील निघत नाही आहे, तर या कंपन्या सरकारी असून देखील तोट्यात चालल्या आहेत, तर याच्या संदर्भात काही विचार सरकार भविष्यात करणार आहे का? अध्यक्ष महोदय, मी आमचे खासदार श्रीमती धानोरकरला मी धन्यवाद देतो की फार महत्त्वपूर्ण प्रश्न सदनचं जवळ त्यांचे ध्यान आकर्षित करायची कोशिश होती। मी त्यांना विश्वास देतो की पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामध्ये आमच्या देशामध्ये सरकारी कंपनीचा विकास आणि प्रगती सुनिश्चित आहेत आणि 10 वर्षामध्ये प्राय प्रगती झाली आमची सरकारी क्षेत्रामध्ये कंपनीचा। देशामध्ये नाही, विश्वमध्ये आमची सरकारी कंपनीचा एक नवीन पेठ विश्वस्तरामध्ये आता झाली आहेत। BSNLचा प्रश्न झाला तर मी त्यांना सांगतो की त्यांची सरकार होती तेच समेतमध्ये BSNLची काय स्थिती झाली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या समयामध्ये 2019 मध्ये रिवाइवल पॅकेज 3,35,000 करोडची BSNLला दिली आणि ते घाटाचा कंपनी 9,000% घाटाचा कंपनी आजच्या दिवसमध्ये 2,000 करोडचा मुनाफा करतात ऑपरेटिंग लेवलमध्ये। हे परिवर्तन झाली आहेत आणि
मी आपणला पण हे सांगतो की BSNLचा 1,40,000 आमची BTS होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीची सोच आहे की आत्मनिर्भर भारतचा नीतीला घेऊन आमच्या देशामध्ये टेलिकॉम इक्विपमेंट त्याच्या आता आमच्या आयात होतात ते देशामध्ये मॅन्युफॅक्चर करून 4Gचा नेटवर्क आम्ही स्वतः करणार आणि पिछडे आमचे 8 माहामध्ये 60,000 BTS BSNLच्या इंडिजिनस 4G इक्विपमेंटमध्ये आता संपूर्ण झाला आहेत. म्हणजे 40% वृद्धी झाली BSNLची BTSची. जे BSNLचे BTS करीब 1,40,000 ची होती आता 2 लाख झाली. अध्यक्ष महोदय मी आपणच्या संरक्षण चाहतो क्योंकि हे महत्वपूर्ण प्रश्न आहेत आणि एम्प्लॉईजच्या कार्यामध्ये आतापणी BSNL मध्ये 55,000 एम्प्लॉईज आमची आहेत. त्यांची देखभाल आमची जिम्मेदारी आहे. तुम्ही काळजी नको करा. अब मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ माननीय संसद में माननीय सदस्य, संसद में माननीय उत्तर, इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे माननीय मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की मी जे स्पेसिफिक 2 प्रश्न विचारले मला फक्त त्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे होतं. मी तुमच्या विभागाची माहिती अजिबात विचारलेली नाही. मागील 10 वर्षात जे तुमचे जिओचे उपभोक्ताधारक असेल, तुमचे BSNLचे आहे, VIचे आहे आणि याच्या अगेन्स्टमध्ये जाऊन तुमचे BSNLचे तुमचे किती उपभोक्ताधारक आहे याची संक्षिप्त माहिती तुम्ही मला देणार का? आणि देत असाल तर जे आपण पाहिलं असेल की मागच्या 10 वर्षात 50% सुद्धा कर्मचाऱ्याचं मानधन होत नाही आहे. महाराष्ट्राची जनताचा निर्णय तो झाला यांच्याजवळ. आता निवडणुकीमध्ये त्यांचा निर्णय झाला यांच्याजवळ आणि त्याच्यानंतर आता ते मला सांगतात की तुम्ही मोठा उत्तर नको द्या. जनताच्या उत्तरपणी त्यांना स्वीकार नाही. हे स्थिती त्यांची झाली. आता प्रश्न झाला की BSNLचे मोबाईलचे उपभोक्ता मी त्यांना सांगतो की हे वर्षामध्ये एप्रिलचा माह तर नोव्हेंबरच्या माहामध्ये 90 लाख उपभोक्ताची बढोतरी BSNLची झाली. 8,80,00,000 आमचे उपभोक्ता होते, आता आमचे 9,70,00,000 उपभोक्ता झाले आणि BSNLची नवीन सर्व्हिस पद्धती BSNLची 4G नेटवर्क 1,00,000 BTS देशामध्ये मईच्या माहामध्ये आमच्या संपूर्ण होणार हे मी आपणला विश्वास देतो. आणि त्याच्यामध्ये सबसे ज्यादा आमचा महाराष्ट्रामध्ये 2,500 BTS 4Gच्या येणार. श्री अरविंद सावंत. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दर्द हो रहा है कि इतना असत्य कैसे बोला जाता है. आज भी अगर उन्होंने BSNL ने मुंबई दिल्ली की सर्विस भी ले ली है. अभी मुंबई शहर में पिछले 2014 से माननीय रविशंकर जी प्रसाद, माननीय वैष्णवी जी तो सब बोलते हैं. एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं मानता हूँ, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, मैं आ रहा हूँ. आज महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी और महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई में यह हाथ उठा के लोग कहे इनके तरफ से कि BSNL के मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं. कहे हाथ उठा कर ये BSNL के, अगर ये सर्विस इंप्रूव हुई ना, क्या झूठ बोलते हो यार. नंबर देना, कितने झूठ बोलते हैं. देखो सबके पास जियो है, सबके पास जियो है सर. चलो नंबर अनाउंस करो, सबके नंबर अनाउंस करना, सभी लोग अपने प्लीज सर आप चैलेंज मत दीजिए सर. एक चैलेंज नहीं दे रहा हूँ. 1 मिनट प्लीज बैठिए, 1 मिनट बैठिए. क्योंकि इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ, संसद में व्यवस्था ही BSNL की है, MTNL की है, इसलिए यूज करना पड़ता. धन्यवाद. वो बुक में मिलता है करके ले रहे, बाकी कुछ नहीं है. मैं इतना ही बता देता हूँ, आज महानगर टेलीफोन निगम में अगर इनकी व्यवस्था अच्छी हुई है, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है, तो महानगर टेलीफोन निगम के कर्मचारी है, उनके कर्मचारियों के कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपना पदपेटी चलाते हैं. सर एक सेकेंड, इन्होंने बिना पूछे उनके 4 करोड़ रुपए पिछले 6 महीने से रखे हैं.
क्योंकि अपनी व्यवस्था के लिए इनके पास पैसा नहीं है और वो कर्मचारियों के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं है, पर आप बता दें। अध्यक्ष जी, मैं सावंत जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज भी हमारे 55,000 कर्मचारी हैं BSNL के, उनका सम्मान, उनका मान और उनका देखभाल BSNL की जिम्मेदारी है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पूर्ण विश्वास और संकल्प है, और इस तरीके का बयान सदन के पटल पर करना ये निंदनीय है। ये आपके समक्ष में रखना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 श्री सुकांत कुमार, तुम्ही या बसा माझ्याजवळ। हा 126 असा वाईट गोष्टी 126 क्वेश्चन नंबर 126 126 आगे बढ़िए। नो 126 126 माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, ऑनरेबल मेंबर, respected speaker sir, I have to ask one question, sir. Will Honorable Minister take immediate action to sanction the long-pending proposed Gopalpur Redakol via Fulbani new broad gauge rail line? Because till date, my parliament, Kandhamal district is an aspirational district and tribally dominated. Till not connected by railways. I ask Honorable Minister whether he will take immediate action to sanction for the proposed rail line, Gopalpur Redakol new broad gauge line. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आपके जरिए से इस सदन के सामने रखना चाहूँगा कि उड़ीसा में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए जहां 10 साल पहले मात्र 800 करोड़ रुपए पर एनम मिलते थे, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए हर साल उड़ीसा की रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। आज उड़ीसा में रेलवे के 73,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में रेलवे का हो रहा है, और एक तरीके से करीब करीब पूरे उड़ीसा में, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सेंट्रल एरियाज हो, सब जगह रेलवे के स्टेशंस का सब जगह इतना तेजी से काम चल रहा है। और अब तो डबल इंजन की सरकार है वहाँ, तो काम और तेजी से चल रहा है। माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की वो हमारे संज्ञान में है। वो एक SPV को काम दिया हुआ है, उसका फॉलोअप चल रहा है। जैसे ही SPV की तरफ से इसका जवाब आता है उसमें अगले स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर सबमिट। I would like to bring to the attention of Honorable Minister of Railways the urgent need for a new railway line connecting Lanjigarh to Brahmapur via Fulbani or Baliguda in Kandhamal district. Kandhamal is a hilly region with challenging terrain which limits connectivity and happens socio-economic development. मंत्री जी, the proposed railway line. माननीय मंत्री जी, Yes, I request for a new rail line connecting from Lanjigarh to Brahmapur via Fulbani or Baliguda. Is there any प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न का जवाब मैंने दिया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल ORIDL को प्रोजेक्ट दिया हुआ है
जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट आने के बाद में उसमें नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय को और भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म के आरंभ होने के बाद से ही उड़ीसा में करीब 20,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। तो उड़ीसा के रेलवे के डेवलपमेंट के प्रति सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शशि थरूर जी। Much, I'd like to turn the Minister's attention to Kerala. You know, after all, new railway lines require decent terminals as well, and the Nemam terminal in my constituency, which is going to be a way of decongesting the railway line to Trivandrum Central, out of the 116 crore project, the Railways has only released 7 crore rupees so far, sir. Work worth 22 crores has already been awarded to the contractor who proceeded with the work in anticipation of payment, but due to insufficient funds, the bills remain unpaid, and therefore the wonderful period today from between December and May, when there is less rain in Kerala, is being wasted. So my request to the Minister is, the media is already reporting this project will never be completed. Is it possible for the Minister to try and pay attention to this very important station that will decongest the railway line up to Trivandrum Central? This is the Nemam Station Terminal. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Speaker, sir, the focus today is to make sure that all the big cities, for example, the Trivandrum point that Honorable MP said, and many other cities like Bangalore, like Chennai, like Secunderabad, Hyderabad, twin cities like Ahmedabad, like Mumbai, Delhi, Patna, Lucknow, practically throughout the country, our focus today is to make sure that the big junctions and the big cities are decongested, new terminals are built, and lots of emphasis is being done on designing them so that the demands and the requirements of next 50 years can be met. Please, the question is not of funds. Question in Kerala is not of funds. We have already deposited 2,150 crore rupees for acquiring land. Unfortunately, that kind of support, I'll request Honorable Shashi Tharoor ji is a very influential MP. He has, people in entire Kerala listen to him. I'll request him to, if required, even sit on a dharna in front of the Honorable State Government and make sure that the land is acquired. Then only the project will be. 127 श्री राजीव राय। सर, क्वेश्चन नंबर 127 के पटल पर रखा गया था। सर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से जवाब आया, लेकिन सवाल करने से पहले मैं 2 बार वंदे भारत से दिल्ली से वाराणसी तक गया और कानपुर से लेकर बनारस तक पूरा कंपार्टमेंट खाली था। सर, मेरा निवेदन ये है कि मऊ से कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन, चाहे राजधानी हो, वंदे भारत हो, शताब्दी हो, कुछ भी नहीं है, और हम लोग के लिए इलाज से लेके हर चीज़ के लिए दिल्ली है। 50 मिनट का रास्ता है। माननीय मंत्री जी, आप विचार करें, अगर और समय अंतराल भी बहुत ज़्यादा है वंदे भारत में, अगर आप उसको मऊ तक एक्सटेंड कर दें, और जहाँ तक सुविधाओं की बात कहेंगे आप, तो आपको याद होगा मैंने आपको फ़ोन भी किया था, आपका वापस फ़ोन आया, मैं आभारी हूँ, पत्र भी लिखा था। जिस तरह का काम चल रहा है, सुविधाएं कभी बंद नहीं पाएंगी, तो क्या मेरे उस सुविधाओं को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को दूर करने वाले पत्र पर विचार करेंगे? वंदे भारत राजधानी या शताब्दी को मऊ तक चलाने का काम करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय जिस वंदे भारत ट्रेन की ऑक्यूपेंसी का जिक्र कर रहे हैं, उसका डेटा है 24-25, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी ऑक्यूपेंसी 113% है। 113% है। मैं फिर भी माननीय सांसद महोदय के पॉइंट को बहुत सीरियसली लूँगा, और अगर इस ट्रेन के टाइमिंग में या अगर कोई और भी कोई विषय आता है तो उसके बारे में ज़रूर माननीय सांसद जी से चर्चा करूँगा। रही बात एक्सटेंशन की, तो मैंने वो पॉइंट नोट किया है, माननीय सांसद महोदय जी से डिटेल में डिस्कस कभी भी कर सकते हैं।